Namaskar. Today my lecture, the subject international organization and the topic discuss the principles organs of League of Nation. Discuss the principles organs of League of Nation यानी राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों की विवेचना कीजिए। ये जो क्वेश्चन है ये यूनिट फर्स्ट का लॉन्ग के पर्पस से ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार ये एग्ज़ाम में लॉन्ग के रूप में आया हुआ है। तो आइए आज इसी टॉपिक पे हम डिस्कस करते हैं प्रिंसिपल्स ऑर्गन ऑफ द लीग ऑफ नेशन। तो प्रिंसिपल्स ऑर्गन ऑफ द लीग ऑफ नेशन, there are three principles organ of League of Nation. Number 1, the Assembly. Number 2, the Council. And number 3, the Secretariats. And last, conclusion. तो पूरे टॉपिक को हम इसी 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक में आपका द असेंबली, दूसरे में द काउंसिल और तीसरा जो है इसका सेक्रेटेरिएट और लास्ट में इसका कंक्लूजन निष्कर्ष। वैसे देखा जाए तो लीग ऑफ नेशन के परमानेंट जो प्रिंसिपल ऑर्गन थे वो 2 ही हैं, द असेंबली और द काउंसिल। द सेक्रेटेरिएट इज नॉट ए परमानेंट प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द लीग ऑफ नेशन, बट फिर भी इसे ऑर्गन्स के रूप में इसको माना जाता है। लेकिन ध्यान रखिएगा लीग ऑफ नेशन के वैसे तो 2 ही मेन प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, एक तो आपका द असेंबली, दूसरा आपका द काउंसिल। तो नाउ स्टार्ट। अब हम इन तीनों को एक्सप्लेन करते हैं। इन द बिगिनिंग ऑफ द 20th century, आउटस्टैंडिंग कॉन्फ्रेंस, डेडलॉक, Hang Peace Conference of 1899 and 1907. They were mainly related to the development of international law। यानी एक बार बेटा फिर रिपीट हम करना चाहेंगे। In the beginning of the 20th century, outstanding conference that took place where the Hang Place Conference of 1899 and 1907, they were mainly related to the development of international law. However, they were also of significance in the evolution of international organization. Experiences and experiments of this conference, along with the conference of preceding century on the one hand and the devastating effect of the First World War on the other hand, led some individuals in England and in America to propose the scheme of a league for the avoidance of war in future. In July 1915, the League to enforce peace was founded. After a long and bitter deliberation, the League of Nations Commissions of the Peace Conference accepted the joint draft presented by the American and England. The draft was given the final shape by the Commission and Convent of the League of Nations was adopted the convent
was a part of the Treaty of Versailles of 1990. The League of Nations was established on 10 January year of 1920 with the main object of maintaining peace and security and to promote international cooperation. The League had two principal organs. The League had two principal organs, the Assembly and the Council. मैंने पहले आपको बताया कि लीग ऑफ नेशन के बेसिकली दो ही प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, एक सभा और दूसरा परिषद. द लीग हैड टू प्रिंसिपल ऑर्गन्स, द असेंबली एंड द काउंसिल असिस्टेड बाय परमानेंट सेक्रेटेरिएट. नंबर वन, द असेंबली. नंबर वन, द असेंबली. नेक्स्ट हेडिंग, असेंबली. द असेंबली यानी सभा. The assembly was represented by all the members of the league. All the members of league according to Article 3. According to Article 3, each member of the league could send 3 representatives of the assembly. यानी प्रत्येक सदस्य जो है वो अपने 3 प्रतिनिधियों को असेंबली में भेज सकता था of the assembly, but they all had one vote. यानी उनका एक ही वोट माना जाएगा. They all had on one vote. The assembly met at least once a year and more frequently if required. The functions of the assembly were not adequately laid down in the convent. It was provided that the assembly may deal at its meetings with any matter within the sphere of action of the league or affected the peace of world. Of the many functions performed by the assembly and the council, A. some were executively reserved for the assembly, and B. others were reserved for the council. C. other again required the cooperation of these two organs, while D. with regard to others and assemblies, competence were either concurrent with or alternative to that of the council. Executively reserved function included the admissions of new members by a 2/3 majority, election of non-permanent member of the council, apportioning the expenses of the league among member, appointment of committees by simple majority, and supervising the work of the council. And second beta B यानी two organs, second organs, the council यानी परिषद. The council was executive organ of the league. The council was executive organ of the league. The council consisted of a permanent member, namely those great power who were member of the league. The council could, with the approval of the majority of the assembly, name other permanent member. B. 11 non-permanent members. Permanent members were the United States of America, the British Empire, France, Italy and Japan. United States did not join the league, यानी अमेरिका लीग ऑफ नेशन का मेंबर नहीं बन पाया. United States did not join the league
and therefore the number was 4 in 1920, which increased to 5 in 1926 with the admission of Germany, and 6 in 1934-35 with the admission of the USSR, and declined to 2 at the end of 1939. Like the Assembly, the Council could deal with any matter within the sphere of action of the League or affecting the world peace. The Council was to direct the work to the Secretariat, arrange for international conference, receive report from the subsidiary organs of the League, determine which reports should be submitted to the Assembly, deal with dispute among League members, and supervise the observance of the mandate, the minorities treaties and other agreements safeguarding the peace of the world was the primary responsibility of the Council. C. The Secretariat. The Secretariat was headed by a Secretary General who was appointed by the Council. The Secretariat was headed by a Secretary General who was appointed by the Council with the approval of the majority of the Assembly. Its work was to assist all organs of the League by providing services of different kinds with clerical, research, drafting, publication, coordination, registration of treaty, keeping of record, arrangements of meeting, etc. It has a staff of 700 persons working thought, 11 sections and numerous services and offices. The most important function of the League was to maintain international peace and security and to settle international differences. This could be done in their way. Firstly, if any dispute arose between the states, that could be settled by peaceful means. Secondly, states were urged to accept the jurisdiction of the Permanent Court of International Justice with minimum reservation. Thirdly, the Council was entrusted with the ultimate responsibility for keeping the peace of pursuing violation when all other means had failed. तो ये टॉपिक आपका था प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ लीग ऑफ नेशन, यानी राष्ट्र संघ के प्रमुख अंग। तो मैं एक बार दोबारा आपको बताना चाहूँगा कि यूनिट फर्स्ट में दो टॉपिक ऐसे हैं जिस पर ज़्यादातर लॉन्ग क्वेश्चन पूछे जाते हैं और हमेशा किसी न किसी रूप में ये लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। एक तो पहला टॉपिक था आपका डिफाइन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड डिस्कस इट्स काइंड्स और क्लासिफिकेशन। कभी काइंड्स पूछता है या फिर कभी क्लासिफिकेशन, दोनों एक ही। और यूनिट फर्स्ट से दूसरा टॉपिक है जिस पे लॉन्ग क्वेश्चन पूछा जाता है वो है ये लीग ऑफ नेशन। लीग ऑफ नेशन में यही पूछता है कि डिस्कस द
प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ लीग ऑफ नेशन, यानी राष्ट्र संघ के प्रमुख अंगों की विवेचना कीजिए। तो प्रिंसिपल ऑर्गन यानी वैसे तो देखा जाए, जैसा कि मैंने बताया कि इसके दो ही प्रिंसिपल ऑर्गन थे, यानी मुख्य रूप से दो ही राष्ट्र संघ के अंग थे, सभा और परिषद। सेक्रेटेरिएट मुख्य यानी कि परमानेंट ऑर्गन नहीं था, वो उसके सपोर्ट के लिए बनाया गया था, असेंबली और काउंसिल को, फिर भी इसको जो है वो तीन ही माना जाता है। दूसरी चीज़ ये है कि लीग ऑफ नेशन को चाइल्ड ऑफ वॉर भी कहा जाता है। ध्यान रखिएगा, मैं थोड़ा सा इसमें ब्रीफ में जाऊंगा, क्योंकि लीग ऑफ नेशन को बनाने में, क्योंकि चाइल्ड ऑफ वॉर इसलिए भी कहते हैं क्योंकि इसका जन्म ही युद्ध की परिस्थितियों में हुआ था, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद इसका जन्म हुआ। और इसको बनाने के पीछे जो पर्पस था, जो ऑब्जेक्ट था, वो था कि इंटरनेशनल पीस एंड सिक्योरिटी को मेंटेन करना और वार पर रेगुलेट करना, जिससे कि हमारी आने वाली जो पीढ़ी है वो युद्ध की इस विभीषिकाओं से जो है वो बच सकें। तो इसके लिए ब्रिटेन के एक मंत्री थे जिनका नाम था शिशिल महोदय ने लीग ऑफ नेशन को बनाने के लिए बहुत से ड्राफ्ट जो है, बहुत से प्रारूप को प्रेजेंट किया, और इसलिए इंटरनेशनल लेवल पे उस ड्राफ्ट को सिसिल ड्राफ्ट के नाम से जाना जाता है। और इसके बाद अमेरिका के पूर्व प्रेसिडेंट वुडरो विल्सन के अथक प्रयास से, यानी उन्हीं के ही प्रयास से लीग ऑफ नेशन को इस्टेब्लिश किया गया, और 1920 में लीग ऑफ नेशन को इस्टेब्लिश किया गया और इसके 3 मुख्य अंग बनाए गए। देयर आर 3 प्रिंसिपल ऑर्गन। नंबर 1, वैसे तो 2 ही हैं, जैसा कि मैंने बताया कि 2 ही प्रिंसिपल ऑर्गन हैं, असेंबली एंड काउंसिल। इनके सपोर्ट के लिए सेक्रेटरी को रखा गया है, सेक्रेटरी को बनाया गया है, फिर भी इसको हम 3 ही प्रिंसिपल ऑर्गन मान सकते हैं। लेकिन अगर बेसिकली देखा जाए तो देयर आर 2 प्रिंसिपल ऑर्गन, असेंबली एंड काउंसिल। सबसे बड़ी बात ये थी कि लीग ऑफ नेशन के प्रिंसिपल ऑर्गन को तो बता दिया गया था, लेकिन इनका जो रिडक्शन क्या होगा इसके बारे में प्रोविज़न में कहीं पर भी, किसी भी आर्टिकल्स में ये प्रोविज़न नहीं था कि इन तीनों का जो रिडक्शन क्या होगा। लीग ऑफ नेशन के ऑल मेंबर यानी सभा के सभी सदस्य जो हैं वो, यानी राष्ट्र संघ के सभी सदस्य वो असेंबली के मेंबर माने जाते थे, और एवरी मेंबर को सभा में 3 प्रतिनिधियों को भेजने का अधिकार था, यानी मैक्सिमम जो है वो 3 रिप्रेजेंटेटिव को भेज सकता था, लेकिन उनका एक ही वोट माना जाता था। तो ये था ये टॉपिक, इसको तैयार कर लीजिएगा। बाकी शॉर्ट नोट के पर्पज़ से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी द असेंबली पूछ देता है तो कभी द काउंसिल को पूछ देता है, तो इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। और अगर हम पिछले साल के क्वेश्चन को रीड करें तो ये जो है कई बार पूछा जा चुका है। जैसे अगर हम देखें तो इसको देखिए, ये आपके 2014 में इसको शॉर्ट में पूछा है कि 2 वीकनेसेस ऑफ द लीग ऑफ नेशन। इसके अलावा 2015 में इसको लॉन्ग में पूछा है, डिस्कस द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द लीग ऑफ नेशन। इसके अलावा 2015 में भी ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द लीग ऑफ नेशन, राष्ट्र संघ के उद्देश्य को शॉर्ट में पूछा है। अगर 2016 की बात करें तो 2016 में भी इसको लॉन्ग के रूप में पूछा है। दूसरा क्वेश्चन है जो आपको दिखाई दे रहा होगा, जिसमें लिखा है कि डिस्कस द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द लीग ऑफ नेशन एंड व्हाट आर द वीकनेसेस ऑफ द लीग ऑफ नेशन। तो ये देख लीजिएगा। इसके अलावा 2017 में देखा जाए तो 2017 में भी लॉन्ग क्वेश्चन के रूप में पूछा है। क्वेश्चन नंबर 2 अगर आपको दिखाई दे रहा होगा तो देखिएगा, इसमें भी पूछा है कि डिस्कस द प्रिंसिपल ऑर्गन्स ऑफ द लीग ऑफ नेशन। देयर आर वेरी इंपॉर्टेंट
टॉपिक। तो ये देखिए 2-3 साल से लगातार पूछा है। इसके अलावा ये 2017 में शॉर्ट नोट में भी पूछा है, ऑब्जेक्ट ऑफ द लीग ऑफ नेशन। अगर 2018 की बात करें तो 2018 में भी ये लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 पूछा है कि व्हाट वाज द लीग ऑफ नेशंस, व्हाई वाज द लीग ऑफ नेशन एस्टैब्लिश्ड, डिस्कस इट्स वीकनेसेस। तो देयर आर सेम क्वेश्चंस वही है, पर थोड़ा सा पूछने का तरीका चेंज कर दिया है, लेकिन इसमें घबराने की जरूरत नहीं, आपको वही लिखना है। लगातार देखिए बेटा 4 साल से लगातार ये पूछ रहा है। इसके अलावा हम 2019 के क्वेश्चन पेपर को रीड करें तो 2019 में भी जो पहला लॉन्ग क्वेश्चन है वो इसी टॉपिक से पूछ रहा है कि डिस्कस द प्रिंसिपल ऑर्गन ऑफ द लीग ऑफ नेशन। तो इसको आप तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी का हम नेक्स्ट टॉपिक। थैंक यू।